Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying forward with geography, chapter 4, which is talking about agriculture. Agriculture, the main occupation of the people in our country. Maximum people are involved into the agricultural business, as we have already read in economics that this is the primary occupation where we find maximum number of people involved. So agriculture is the occupation, or we can say the area where we are finding that when maximum people are involved. So we should know how it is happening and what are the major criteria of growing the crops. Basic activity of the people from very olden times, from the times immemorial, when itne purane samay se, when all this work is happening. So we have to be very clear on that, okay, how is it happening and what are the major criteria. Now the crops, how the crops are grown. We have talked about the types of farming, different types of farming that are practiced in India. Subsistence farm, primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, and commercial farming. Then we talked about the cropping pattern. Rabi, Kharif, and Zaid crops are grown in India. Then we started talking about the different kind of important food crops that are grown in India. Food crops में rice पढ़ा, wheat पढ़ा, millets पढ़ा, and pulses. Yesterday while we were talking, I told you इंडिया का ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे कि दाल यूज ना होती हो. Where the staple crop pulses is not used, it is one of the most essential features of any food items that people are intaking, especially the non-vegetarian people. Dal is a must for them. Food crops other than grain, कल हमने ये शुरू किया था, where I told that we'll be carrying on forward with this crop most important. दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा भी कुछ चीजें हैं that is very important, where we need some sweet, where we need some मीठा. So for मीठा हम शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, जिसकी चीनी बन रही है, गुड़ बन रही है, एंड हमारे घर तक आता है वो. एंड ऐसा कोई घर नहीं है जहां चीनी ना मिले या गुड़ ना मिले. सो हाउ इट इज ग्रोन, इट इज सबसे पहले ये समझना, इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. इट इज वेरी ग्रोइंग वेरी वेल. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, आजकल का जो क्लाइमेट है, दिस इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग शुगर केन. एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. आजकल तो उससे ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है इन द एनवायरमेंट. एंड एनुअल रेनफॉल होना चाहिए. एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. लो रेनफॉल अगर है, इफ रेनफॉल इज लेस, तो देन वी नीड irrigation facilities, water facilities, irrigation facilities are then definitely required. Now lot of work is needed. Sugar cane के लिए it is soil, it needs lot of manual labor. The next important point that we carry forward here is it needs lot of manual labor. ठीक है, मैनुअल लेबर इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बहुत तरीके का काम है जिसके लिए जो कि नीडेड है शुगर केन के ग्रोथ के लिए. राइट फ्रॉम, मतलब मैनुअल लेबर जब इसको, जिस समय इसको सोइंग करते हैं, जिस समय इसको उगाते हैं, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, लॉट ऑफ मैनुअल लेबर राइट फ्रॉम sowing to harvesting. ठीक है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का काम इसमें करना बहुत जरूरी है.
एंड अगर ये सही तरीके से इफ इट इज नॉट प्रैक्टिस, इफ इट इज नॉट डन, तो शुगर केन की फिर आउटपुट नहीं, फिर हम इतना जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है ना, दैट मनी विल गो इन वेन, वो सारा पैसा जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा। ये हम लोगों को बचाना है। एंड अब देखो इंडिया की पोजीशन, बिकॉज हम बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पे भी ना चीनी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लॉट ऑफ शुगर वी आर यूजिंग एंड वी आर कंज्यूमिंग। सो फॉर दैट पर्पज हम काफी बड़ी मात्रा में शुगर केन ग्रो करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इंडिया इज द second largest producer of sugarcane। इतना ठीक है। पहला कौन है? आफ्टर ब्राजील। सबसे ज्यादा शुगरकेन जो ग्रो हो रहा है दैट इज इन ब्राजील। ब्राजील के बाद जो सेकंड जहां पे सबसे ज्यादा शुगरकेन ग्रो हो रहा है दैट इज इंडिया। मेन सोर्स ऑफ कोर्स क्या क्या चीजें हमको इससे मिल रही है? मेन सोर्स ऑफ गुड़, शुगर, खांडसारी, मोलासेस। मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खांडसारी। ये देखो, दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ शुगर्स। अलग अलग नाम से शुगर को अलग अलग, इंडिया में यू नो द डिफरेंट प्लेसेस, द रीजनल डाइवर्सिटी दैट वी हैव, वहां पे ये दिस इज नोन एंड मोलासिस। गॉट इट? ये सारा जब हम ग्रो कर रहे हैं, द मेजर, अब आप ये समझिए मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग हमारे यहाँ पे कहाँ पे शुगर केन हो रहा है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर शुगर केन। अब वही बात है, स्टेट्स का नाम याद रखना। आई टोल्ड यू सम स्टेट्स आर वेरी कॉमन ऑल इन ऑल दी क्रॉप्स। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, आंध्रा, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, बिहार, ऑल दीज प्लेसेस, ये सारी जगह जो है, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा। इतनी जगह पे हम जो शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया पे। इंडिया में काफी इनकम है शुगर केन की, राइट, यूजिंग इट इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। हर जगह पे शुगर केन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ग्रेन, आई मीन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, दाल चावल के अलावा, दाल चावल रोटी स्टेपल क्रॉप है ना इंडियंस का, इसके अलावा और क्या चीज चाहिए? एक तो मीठा हमने खा लिया ना, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हम दाल चावल और रोटी नहीं खा रहे हैं। एवरी टाइम वी आर नॉट कंज्यूमिंग दाल चावल एंड रोटी। कभी कभी इससे अलग भी कुछ खा रहे हैं। क्या? ऑफ कोर्स पूड़ी भी चाहिए होता है। यस, थिंक इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ओकेजन्स है तो पूड़ी चाहिए ही चाहिए। अब पूड़ी चाहिए तो पूड़ी के लिए हमको तेल चाहिए ही। सब्जी मजेदार तभी बनेगी व्हेन वी आर यूजिंग लॉट ऑफ ऑयल। ये ऑयल कहां से आ रहा है? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 2008 में इंडिया वॉज द सेकेंड
थोड़ा सा डाटा मेरा पुराना है, आप नया डाटा भी आपके पास हो सकता है। इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब देखो, इन 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ groundnut आफ्टर चाइना। ये भैया चाइना हर जगह नंबर 1 पे आ रहे हैं। एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग कि फॉर ऑल दीज क्रॉप्स दैट आर बीइंग ग्रोन, चाइना से हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, क्योंकि मूंगफली का तेल बहुत चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं। हम ही क्या इस्तेमाल करते हैं, यू नो, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग एडिबल प्रोडक्ट्स। आपको अब मैं बताती हूँ, आई विल गिव यू द नेम्स, तो आपको समझ में आ गया। हाँ, हल्दीराम्स, बीकानेर वाला, ये जो इतने सारे नमकीन मार्केट में आते हैं, ऑल दैट, वो किस चीज में फ्राई करते होंगे? आर दी यूजिंग सम ऑयल और नॉट? तो इनका जो ऑयल प्रोडक्शन, इनका जो ऑयल कंजम्पशन है, मतलब पूरी इंडिया में जितना भी है नमकीन वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका सारा काम ऑयल पे चलता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑयल इज यूज्ड ऑन सच अ वास्ट स्केल ऑल ओवर इंडिया। तो हमने इसलिए इतना ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमारा कंजम्पशन कहीं से भी कम नहीं है। वी आर नोवेयर कंज्यूमिंग लेस ऑयल। अब जैसे रेप सीड प्रोडक्शन है इंडिया में, इन इंडिया, क्योंकि रेप सीड इज तीसी का जो तेल होता है, यस, रेप सीड प्रोडक्शन, इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, वी आर कंपीटिंग विथ वर्ल्ड कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि एशिया में या यूरोप में या इस तरह से, पूरी दुनिया में, मतलब एग्रीकल्चर में वी आर नोवेयर लैगिंग बैक। लेकिन क्या है ना, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो बाहर का जो हमारा द करेंसी फ्रॉम आउटसाइड, इट इज नॉट रीचिंग इंडिया जितना होना चाहिए। इनकम जितनी हमारी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना in 2008. India was I'm so sorry. India was in India third largest producer of rapeseed. I'm so sorry. तीसी का जो तेल होता है, ठीक है, दैट इज द रेपसीड, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। डिफरेंट ऑयल सीड्स, हमारे यहाँ पे बहुत तरीके के ऑयल सीड्स हम ग्रो कर रहे हैं, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। जितना हमारे यहाँ क्रॉप ग्रो हो रहा है उसमें 12% लैंड पे हम खाली ऑयल सीड्स की ही खेती कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन भी उतना ही है। प्लीज अंडरस्टैंड, different oil seeds are grown all over India। पूरी कंट्री में हम ग्रो कर रहे हैं, are grown covering approximately 12% of टोटल। 12% कितना ज्यादा है? पूरे कंट्री में से 12% लैंड पे सिर्फ तेल के ऑयल सीड्स की ही खेती हो रही है, तो ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री।
ठीक है, खेती हो रही है, लार्ज स्केल पे हो रही है। जितना भी क्रॉप एरिया है उसमें 12% लैंड पे हम खाली तेल की ही खेती कर रहे हैं, मेन ऑयल सीड्स। अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे ऑयल सीड्स तो ग्रो हो रहा है, किस किस कौन कौन से तेल हम खा रहे हैं, किन किन चीजों का तेल खा रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया। Okay. Main oil seeds produced in India are main oil seeds produced in India are, ठीक है, ग्राउंडनट। सबसे पहले तो आप ये देखिए मूंगफली का तेल है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, हर एक ऑयल हम कंज्यूम करते हैं। मस्टर्ड, अरे सरसों का तेल तो हम सोच ही नहीं सकते। साउथ में पीपल कैन नॉट इमेजिन द फूड प्रोडक्ट्स विदाउट द कोकोनट ऑयल। सेसमे, सेसमम, तिल, तिल का तेल, हाँ तिल का तेल भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड सोयाबीन, castor oil, linseed, soybean, castor oil, cotton seeds are also there. Cotton seeds are also mentioned here, linseed and sunflower. Castor oil, cotton seeds, कॉटन के सीड्स का भी तेल, यस चिल्ड्रन, बनता है, दैट इज देयर, linseed and sunflower. So you can see how we are producing, how we are involved in the production of these edible oils. Most of these, ज्यादातर जो है इसमें, these are edible oils. हम खाते हैं इसको, हम कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल ऑयल्स एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। मोस्ट ऑफ दीज आर edible oils and used as cooking medium. Okay. खाना बनता है, बिना तेल के खाना नहीं बन सकता है। Some of these are also used, अब some of these देखो, raw material in the production of soap, cosmetic, ointment, है ना, तेल के गुण होते हैं बहुत सारे साबुनों में। अदरवाइज क्या होता है कि योर स्किन को आपको नुकसान देगा। तो मेनी ऑफ दीज ऑयल एडिबल नहीं है, जो दैट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। मेनी ऑफ दीज आर यूज्ड एज raw material in soap, क्योंकि साबुन जो बन रहा है उसमें बहुत जरूरी होता है कि कुछ मात्रा तेल की पड़े हमारे बॉडी को, एसेंशियली विच इज नीडेड फॉर आवर बॉडी। बाहर से भी, अंदर से भी तेल की जरूरत है, बाहर से भी। तो कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट, सोप, cosmetics and ointment. Ointment जो नहीं, दर्द के लिए एंड बाम एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यस, उसमें भी बेसिक थिंग दैट इज यूज्ड इज द ऑयल। ऑल दिस स्प्रे एंड ऑल में भी सम अमाउंट ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड। तो आप ये सोचिए कि घरों तक तो आ ही रहा है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनटेक हो रहा है, प्लस अदर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर। ग्राउंडनट का समझो, अब जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली, यस इट्स अ खरीफ क्रॉप,
and accounts for about half of the major oil seeds produced in the country. आधे से ज्यादा जो है ग्राउंड नट की खेती में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, बिकॉज it is used on a very large scale. So please understand that groundnut is a kharif crop. Got it? It is a kharif crop and accounts for about half of the major oil seeds produced in the country. पूरे देश में बहुत ज्यादा मूंगफली के तेल का इस्तेमाल हो रहा है. यस, दैट्स द फैक्ट. और खरीफ सीजन में होता है. इट इज ग्रोन इन द खरीफ सीजन. मॉइस्चर इसके लिए जरूरी है. फॉर दैट पर्पज थोड़ा सा इस तरह का क्लाइमेट बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है. वहां पे इट इज ग्रोन एंड गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? इट इज गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. देखो हम कितना तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं. वी डोंट रियलाइज, बट देन हमारे डाइट से लेके, हमारे लाइफ से लेके, हमारे कॉस्मेटिक से लेके हर एक चीज में तेल का इस्तेमाल हो ही रहा है. बाय ऑल मीन्स वी आर यूजिंग ऑयल. And Gujarat was the largest producer of groundnut. हमको स्टेट वाइज भी, वर्ल्ड में तो है ही, लेकिन स्टेट वाइज भी थोड़ा बहुत डेटा पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है. फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. फॉलोड बाय सेकेंड प्लेस पे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. गॉट इट? आप ये देख लीजिए. दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट डेटा ऑफ द ग्रोइंग ऑफ ग्राउंडनट्स. नाउ linseed and mustard are rabi crops. Groundnut के लिए गर्मी वाला सीजन चाहिए. खरीफ सीजन इज नीडेड. राबी क्रॉप, अब आप देखिए राबी क्रॉप में वी हैव linseed एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स. linseed and mustard are rabi crops. मस्टर्ड तो यू नो इट वेरी वेल. फेब्रुवरी मार्च के आसपास ही आपको ज्यादातर लोगों के खेत में सरसों नजर आएगा ही आएगा. इट हैज टू बी. तिल अगेन सेसमम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया. सेसमम देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है. सेसमम इज अ kharif crop in north and rabi crop in south. क्योंकि कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है. इट इज कंज्यूम्ड ऑल्सो ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. कैस्टर सीड जो है, कैस्टर ऑयल जो है, that is grown both in Rabi and Kharif season. Castor seed is grown in Rabi and Kharif season. इसमें you have to understand that the questions that are asked in the board, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि डैश इज अ डैश क्रॉप इन, डैश इज लाइक सेसमम इज अ डैश क्रॉप इन नॉर्थ,
in the sesamum is a crop, rabi crop in north and dash crop in south. ठीक है, डैश क्रॉप इन नॉर्थ एंड डैश क्रॉप इन साउथ. तो रबी क्रॉप एंड खरीफ आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा. या एक्चुअली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बोर्ड में. हर तरीके के क्वेश्चन के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए वी आर प्रिपेयरिंग इट इन दैट मैनर ओनली. ओके, अब तो ये हमने समझ लिया कि मीठा भी हो गया, ऑयल भी चाहिए, पूरी भी खा ली हमने, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बिना काम नहीं चलता है. मेरा काम तो बिल्कुल नहीं चलता है. आई तो जस्ट कांट वर्क विदाउट दिस फूड क्रॉप. खाते नहीं हैं, पीते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है. आई तो सिंसियरली नीड इट 2 to 3 times a day. या नहीं मिलेगा तो पेट्रोल गाड़ी चलेगी नहीं. या मैं चाय की शौकीन हूँ. आई डू कंज्यूम लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा नहीं, होल डे नहीं, but then 2 to 3 times it's required. टी, ठीक है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्चुअली दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. हर जगह, मतलब कि दूर दूर तक अगर आप, इफ somebody is involved in growing tea, तो आपको फिर उनके खेत में टी के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आएगी. यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग अदर देन टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज टी, दैट इज देयर. ओके, तो अब किस तरह से, what are the conditions in which tea is grown? Again, it is an important beverage crop introduced in India by the British. Of course, ये Britishers लेके आए हैं. It is an important beverage, means पीने वाला पदार्थ, beverage crop in India, और इसको लेके आए थे, introduced by British. Got it? Yes. Please understand. Britishers का ही ये इंट्रोडक्शन था, एंड दे वांटेड, दे ऑलवेज सेड कि पता नहीं यहाँ पे लोग पियेंगे कि नहीं पियेंगे. कुछ लोगों को उन्होंने ऐसी लत लगा दी ना, ऐसी आदत लगा दी. दे वर वेरी स्मार्ट पीपल. बिजनेस में तो जितना इनका दिमाग चलता है उतना तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है. दैट इज देयर. एंड मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आज जितना भी इंडिया में, पहले ब्रिटिशर्स वेर द ओनर्स ऑफ द टी प्लांटेशंस जहां पे टी वाज ग्रोइंग, लेकिन आज मोस्ट टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस. Most tea plantations are owned by Indians. What? That is there. Now tea के बारे में और हम डिस्कस करेंगे, but then children we will be discussing it in the next class. Till then, thank you so much and all the best to you. लेकिन 2-3 things that I'll make you mark in the book itself. Come, let's see. So students, what we discussed today is we discussed about sugar cane. Sugar cane हमने actually last class में ही शुरू किया था, but today we have concluded this. इसमें we have tried to understand where it is grown in hot and humid climate, temperature कितना होना चाहिए. You know, these things are really important that you need to take care of. शुगर केन का ये देखो, पानी कितना चाहिए, कितना यहाँ पे the can easily reach to the roots of the sugarcane plant. That is important. And then ये कुछ cultivation methods देखिए. अब जब oil seeds, we have had a lot of discussion about the oil seeds today. So we have discussed about groundnut, sunflower, mustard, and ये देखिए किस तरह से ये खेती हो रही है and how the farmers is involved into this. Sunflower is there and mustard. This is ready to be harvested in the field. Field में इसका harvesting होना बस बचा हुआ है, बाकी सारा काम हो गया है. Then ये थोड़ा सा year and the data you need to remember. आपके उसमें जो भी year दिया होगा ना, whatever year is mentioned, you can jolly well mention those years only. It's absolutely fine.
And लेकिन the different kind of oil that is grown in India, you need to mention about it in detail. इसको थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर बताइएगा. चाइना के साथ हम वेयर डू वी स्टैंड विद चाइना, कनाडा, इंटरनेशनल लेवल पे हम किस किस कंट्रीज़ के साथ compete कर रहे हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है. सो जस्ट डू टेक केयर ऑफ दीज सम पॉइंट्स चिल्ड्रन and things would be easy for you. Okay, so this is what I wanted to show you. Tea cultivation, tea plant, and how it is grown, this we will be discussing in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.